students, welcome back to political parties, and we were on challenges to political party. In the previous slide, in the previous video, I explained you what all challenges political parties have. We are going to discuss them one by one, and they're very simple. See, understand first, from the point of view of board exam, these challenges would be given as a question, and then you have to justify or explain whatever they give a question, and then you have to write an answer. Normally for 3 marks, but yes, if you're luck, they can ask you for 5 marks. So how many challenges you see on the screen? There are 4. I'll give you the description all one by one. So let's go for the first challenge. Lack of internal democracy. First and foremost, where students get confused, I'll tell you that. जब भी हम बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी की, आपका एक और चैप्टर है जो चैलेंजेस की बात करता है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है. आप कंफ्यूज मत होइए. चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी है, यहां डेमोक्रेसी को पिक्चर में मत लाइए. कंसीडर योरसेल्फ, योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड, योर क्लास एज एन पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी. देन व्हाट ऑल चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टी विल हैव आर रिटन हियर. तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. Let me give you an example to make you understand these things. Do you think these political party today's conduct internal election for what? To choose their president or treasurer or anybody else for a higher position? Answer would be no. Why? Because see, one more thing. These political parties do not know who is their member at a lowest level. अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होती तो दे विल कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, दे विल हैव अ रिकॉर्ड एंड दे विल नो हु देयर मेंबर्स आर, विच इज नॉट देयर. तो इंटरनल कोई डेमोक्रेसी है नहीं विद इन द पॉलिटिकल पार्टी. ना वो जानते हैं उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, द टॉप लीडर्स, दे डोंट नो हु इज द लोकल कॉर्पोरेटर एट अ प्लेस इन कर्नाटका, इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और समवेयर एल्स. तो प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. बेसिक चीज याद रखिए, दे डोंट हैव डेटा ऑफ एवरीवन हु इज द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. सेकेंड थिंग, दे डू नॉट हैव एन अटेंडेंस सॉर्ट ऑफ एन सिस्टम एंड ऑल वेर इन एवरीवन इज मीटिंग. वो भी नहीं होता है. मीटिंग होती है बट हु अटेंड्स? ओनली द क्रीम्ड लेयर और द टॉप लीडर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन टू चूज द टॉप लीडर. जो पहले से वहां लीडर है, जो मेन लीडर्स हैं, बस वही कंटिन्यू करते हैं पोजीशंस को. ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इज इफ समबडी लाइक यू हु इज गुड एट पॉलिटिक्स, हु वांट टू ब्रिंग गुड चेंजेस इनटू सोसाइटी, विल नेवर गेट चांस टू रीच अप टू द टॉप, और दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. सो इफ यू आर वेरी गुड, nobody can stop you in any field, but herein the hindrance will be little more. Second thing, or the second issue, challenge is money and muscle power. Now go with the statement money and muscle power. Don't you think political party give the ticket to someone who has lot of money? आपने देखा होगा जब डेटा आता है, जो एमएलए या एमपी खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, करोड़ों की जमीन ज्यादा है उनके पास. Now question is, why is that political party give the ticket to someone who is extremely rich? Answer is very simple. Don't you think political party require funds to run the party for the campaign? So what they do, they give ticket to rich section of society or richer candidate. इससे बहुत ज्यादा फायदा है, पैसा फ्लो इन होगा जो आप खर्च कर सकते हो. पर नुकसान यही है, a good candidate will lose a seat. We will lose a good candidate. Then come to muscle power. Now when I say muscle power, ये muscle power ये वाले नहीं है. Here muscle power means somebody having criminal contact or somebody is criminal, जिनसे डरते हैं लोग. Problem with this is why they give tickets to these people who are having lot of money and people with a lot of criminal touch is that they will influence the voters for the vote. But then in both the cases you lose out on a very good candidate जो शायद कुछ बदलाव ला सकता है. Muscle power में the thing is that at times you have constituencies where somebody with a very strong criminal background contests an election, and because of the fear of that kind of candidate, nobody actually files up for nomination.
ऐसा भी होता है, बस मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में गुंडा हूं, बस मैंने फॉर्म भर दिया, मेरे डर के मारे कोई दूसरा फॉर्म ही नहीं भरता है, मैं जीत जाता हूं, तो एक अच्छा कैंडिडेट मिस हो जाता है। तो पहला चैलेंज था आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो विद इन पॉलिटिकल पार्टी ना इलेक्शन होना, ना डेटा होना, ना मीट होनी, ना प्रेसिडेंट का चुनना, ये सारी चीजें, इससे लॉस क्या है, एक अच्छे कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता है। मनी एंड मसल पावर, टिकट is given to someone who is rich, who can pull in money, who can bring the money, who can arrange the money, that can influence the voters, that can be used for campaign, or in short bribery, corruption. Muscle power, जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है पुलिस के मुताबिक सही नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स। तीसरे पे आते हैं, तीसरे चैलेंज पे, अनफेयर एडवांटेज एंड डायनेस्टिक सक्सेशन। लेट्स कीप इट टू डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी बड़ा सिंपल सा चीज है। यू हैव इन इंडिया जो रूलर्स होते हैं, आप गुप्ता डायनेस्टी ले लो, मौर्यन डायनेस्टी ले लीजिए, मुगल्स ले लीजिए, मराठास ले लीजिए। सो इफ आई एम अ किंग, माई सन विल बी अ किंग, चाहे वो हकदार हो या ना हो, या केपेबल हो या ना हो। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैलिबर। आपको एक बहुत ईजी एग्जाम्पल देता हूं, आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे। डायनेस्टिक सक्सेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी prominent political party, the first political party of our country, Congress. So after independence, everyone knows that Jawaharlal Nehru was the leader of this party, and he was also the first PM of our country. After Jawaharlal Nehru, this party was run by the daughter Indira Gandhi ji. इसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ी और प्रोमिनेंट पोजीशन पे उनके बेटे थे संजय गांधी और राजीव गांधी, और शायद उनकी बहू भी थी जिनका नाम था मेनका गांधी, जो अभी भी हैं। और मेनका गांधी के बेटे वो भी पॉलिटिक्स में हैं। और अब आप रिसेंटली देख ही रहे हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी। तो क्या इस पॉलिटिकल पार्टी में 1947 से लेके 2021 तक कोई और लीडर ही नहीं है? दैट इज दिस लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है, people, good leader miss out on this chair of leadership, and good decisions actually dissolves because of this dynastic power. चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं, absence of meaningful choices. एग्जाम्पल लेते हैं, then I'll describe what is written in the textbook to make it easy for you. देखिए, मैं हूं पार्टी A and I promise that I am going to develop a very healthy and good relationship with Pakistan. I will solve the dispute of LAC in Ladakh or in Sikkim with China. I'll settle all my land disputes with Nepal. So is with Sri Lanka and with Bangladesh. I'll eradicate, or I'll try to eradicate, poverty from our country. I'll bring the modern technologies to our country. I'll make India a very proud and very developed nation. I'll bring back that black money which is there in the Swiss bank. ये मेरा पॉलिटिकल पार्टी का जो है पोर्टफोलियो है, जिसे हम इलेक्शन कैंपेन में यूज करते हैं, पार्टी ए। अब आप पार्टी बी हो, थोड़ी देर सोच लीजिए आप कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करोगे। आपको नहीं लगता कि आप भी यही बातें करोगे कि हम करप्शन मिटा देंगे, हम चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, हम एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, हम करप्शन हटा देंगे? हाँ या ना? सोच लीजिए, आपका आंसर यही होगा। तो मैं पार्टी ए हूं, आप पार्टी बी हो, चलिए किसी थर्ड पार्टी से पूछते हैं किसको वोट दोगे। बस चॉइस कहां है? वेयर इज द मीनिंगफुल चॉइस? सो टू पार्टीज टॉक ऑन द सेम लाइन. They come up with the same sort of thing offering to the people. So there is nothing new. And a bigger problem. I belong to party A, and today I talk about my leader. Today I talk about the ethics of my party. Today I'll talk on the lines of the portfolio of my political party. Tomorrow I'll jump to party B, and then I'll talk the same thing for party B. ऐसे कुछ लीडर हैं, ऐसे बहुत से लीडर हैं जो होते हैं कांग्रेस में तो कांग्रेस की बातें करते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। वही लीडर अगले साल आ जाते हैं बीजेपी में या XYZ पॉलिटिकल पार्टी में, वो उनकी बातें करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर बातें करेंगे।
आप लोग हो, आप वोटर्स हो, अब आप बताइए आपके पास चॉइस है कहां? अगर आप सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे जाओ तो यही लीडर पार्टी ए से पार्टी बी में जा रहा है, पार्टी बी से पार्टी ए में आ रहा है, आपके पास चॉइस तो बदलेगी नहीं। अब मैं हूं ऐसा तो मैं ऐसा ही रहूंगा ना, मेरी थॉट में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। पार्टी ए भी यही बोलती है, पार्टी बी भी बोलती है, उसके बाद लीडर्स भी वही होते हैं, तो आई डोंट हैव चॉइसेस। ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये बहुत बड़ा इशू रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। Whenever we talk about meaningful choices, your parties do not offer you an ideology, they do not offer you something on a different line from the other political parties. जब भी वो कैंपेन करेंगे, जब भी वो पॉलिसीज बनाएंगे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। Then that's the problem why we start choosing leaders on the basis of caste, creed, gender and all those things. और ये डिफ्लेक्शन, मैं यहाँ होता हूँ 1 साल 2 साल, मेरी अगर मांगे नहीं पूरी होती मैं दूसरी पार्टी में जंप कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और नॉट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस विच कैन बी ओवरकम। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, एक साथ भी आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो तब तक आप इन्हें रिवाइज कीजिए। यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, welcome back to Political Arena, and we are still with our political parties. Now we know what are the challenges, so let's help them out and give them some way by which we can reform. ये बहुत important है, बहुत important in the sense that this last part whatever you are doing ना, regularly questions come up from this section, either 3 mark, 5 marks, 1 mark. I mean, whatever you can think of, except map, you will have everything from this section. So let's talk about some ways by which we can reform political parties, not democracy again. So the first thing, you remember the last challenge which I discussed, money and muscle power, uske niche wala jo tha, kya tha? Lack of meaningful choices. And one word, I just said just once, it was deflection. So it's movement of one political person from one party to another. So that means taking the same ideology or making only little change. तो उस वर्ड को याद रखिए। एंड डोंट यू थिंक कि उसके वजह से करप्शन होता है? कहीं आता है ऐसे माइंड में कि करप्शन होता है उसके डिफ्लेक्शन की वजह से? मुझे नहीं लगता है, कुछ लोगों को वो सोच भी रहोगे इस लाइन पे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। व्हाई इज दैट अ पर्सन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी मूव्स टू अदर? Only 2 things or 2 reasons. One, I am not getting the position which I am looking for. Maybe I am winning the elections, but that political party feels, oh, he's not that good to be given a certain constituency or a MLA ticket or an MP ticket. So I get disheartened and I want to move. My progress is this. तो मैं क्या करूंगा? I'll jump on to other political party who offers me this ticket or this seat. And sometime I am an independent candidate. And I'm contesting with someone called Congress, someone called BJP. I win the election. So what happens? You are calculating that you need 1 or 2 seats extra to be in majority. So what will you do? You will find out, or you will go for search to find such independent candidates कि बॉस आप हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, ताकि वो सीट उन्हें मिल जाएगी फिर, और वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, या फिर उनका नंबर या उनका पल्ला जो भी आप कह सको वो भारी हो जाएगा। और ऐसे तो मैं आऊँगा नहीं, कुछ तो मैं लूँगा ही। तो इंडिया में तो ये जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है, बिना पैसे लिए आप कुछ बदलाव लाओगे ही नहीं। आप फ्रेंड्स को नहीं छोड़ते हो, तो जब बड़े हो जाओगे तो पॉलिटिकल कैसा होगा? वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, बट देन ये होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केम इनटू पिक्चर एंड दे सेड, और दे केम अप विद द लॉ, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बस अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी जंप करते हो तो फिर आपकी पोजीशन गई या आपकी सीट गई। इससे करप्शन रुक ही गया। दूसरी चीज, इट्स नॉट अ चीटिंग, बिकॉज यू रिमेंबर वंस we read in 9th grade, the final decision should lie in the hand of the elected representative, and definitely someone who is being chosen should take decision for you. आपने वोट किया कि हमें सुशील सर ये लेसन पढ़ाएंगे, everyone is happy, and when you actually come and see तो कोई और आ गया पढ़ाने के लिए, तो ये चीटिंग हो गई ना। तो यहां पर ऐसा ही होता है, हमने वोट किया इंडिविजुअल कैंडिडेट को, हमने वोट किया पार्टी XYZ को, तो हमें चाहिए कि हमारी पार्टी XYZ का कैंडिडेट हो या वो इंडिविजुअल हो,
पर अचानक आप देखते हो कि ये पार्टी जीतने के बाद ये जंप कर देता है। यार हमने आपको वोट आपकी आइडियोलॉजी को सोच के दिया था, अगर आप दूसरे पार्टी में जाते हो तो आप हमारे साथ चीट कर रहे हो। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ came into picture and law states that if any MLA or MP changes party, he or she will lose the seat in the legislature. जितना चेंज करना कर लो भैया, बस सीट चली जाएगी। और इंडिया में सब कुछ सीट के लिए ही होता है। दूसरा है एफिडेविट। अगेन सुप्रीम कोर्ट केम इनटू पिक्चर एंड दे सेड कि दोज हु आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन दे हैव टू डिस्क्लोज देयर इनकम, देयर एसेट एंड देयर लायबिलिटी. Apart from that, all the criminal cases pending against their name and education. ये तीनों चीजों को आपको हमें डिस्क्लोज करना है और इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ क्यों पास किया? आप पहले वो सोचिए, देन ओनली यू विल रिमेंबर दिस थिंग: एजुकेशन, एसेट एंड लायबिलिटी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, so that you can take a proper decision. If you have candidate A and B and you know the qualification, the education, the liability, the asset, whatever, and about B also the same thing, then you can take a decision कि भैया ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बहुत खराब है, ये घटिया है, ये एकदम ही घटिया है। तो वो होता है ना कि we have to take a choice or we have to make a choice between better and good or maybe bad and worst, so that you can do on the basis of this affidavit. And the third thing or the third law which came up was by election commission, and simply they said was you have to disclose or you have to fill the income tax return of your political party. बहुत ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजों में अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो करप्शन को मैं करप्ट कर रहा हूं। और वो जो याद है मनी एंड मसल पावर, उस पर भी फोकस करोगे तो एफिडेविट से क्लैरिटी मिल जाती है। और इन दोनों चीजों से मैं करप्शन को करप्ट कर रहा हूं कि मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का इतना पैसा कहां से आया और कैसे आया। सो द थर्ड थिंग वाज बाय इलेक्शन कमीशन वेयर इन दे मेड अ लॉ दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज need to hold their organization elections and file their income tax returns and show us. ये तीन तरीके लीगल वाले हैं जो लॉ हैं, but then certain suggestions also poured in, और वो suggestions भी देख लेते हैं। See, सबसे पहला याद है आपको lack of internal democracy, बस उसको ले लो कि हमें उसी का रिफॉर्मेशन करना है। तो ये है ways to reform political party. Compulsory, it is compulsory to hold इंटरनल इलेक्शंस। आप इंटरनल इलेक्शन रखिए, मेंटेन रजिस्टर एंड फॉलो योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू हैव योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, देन हैव लीडर्स वेयर इन इफ सम केसेस देयर यू नीड टू check by yourself and then punish the way you wish to, or maybe give the reward as per your constitution. ये थोड़ा सा complex है, but yes, this is a suggestion that you should compulsorily have internal election, maintain your register, follow your own constitution. इससे क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है ना वो मेंटेन हो जाती है, वो बन जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर आता है एक और इंटरेस्टिंग सा चीज। अब अगेन दिस इज अ डिबेटेबल थिंग एंड पीपल स्टार्ट रेजिंग देयर आईब्रोज कि ये एक्चुअली कैसे पॉसिबल है, पर है क्या? ये है मैंडेटरी टू गिव minimum party tickets, that is 1/3 to women. चलिए, I agree, but then there is a question when I read the second line. Should be a quota for women in decision making. मैं मानता हूं 1/3 सीट्स दे दीजिए, बट देन वो ये भी कहते हैं कि जब आप डिसीजन लो उस वक्त भी वो होने चाहिए, उनका कोटा होना चाहिए और वो आपको सुनना है। So ये भी एक suggestion है। See, understand these are the suggestions which are not been imposed or implemented. They are still in box or out of the box but not implemented. The third one, interesting one. इससे आपका टैक्स 100% बढ़ जाएगा। They say election should be conducted or should be funded by state. तो state funding होनी चाहिए elections के लिए। Government should give grants to political parties to support election expenses, example petrol, paper, telephone, etc. यार पहली चीज तो ये है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरी चीज ये मैं दूं कैसे, तो वो सिंपल है, प्रीवियस इलेक्शन का डेटा ले लीजिए। द पार्टी हु हैज गॉट
the number of the votes, on the basis of that percentage, give them the amount which you wish to draft or to give to these political party. तो देखिए ना, मुझे बोलने में जीभ लड़खड़ा रही है, इतना सोचना पड़ रहा है कि ये कैसे करें। तो सोचो जब आपको ये करना पड़ेगा तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और इलेक्शन फंड करना बहुत 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 बड़ा जोखिम है हम लोगों के लिए। हम 100% टैक्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप एक काम कीजिए, आप जरा चेक कीजिए कि इंडिया का जो लास्ट इलेक्शन था वो कितने हजार करोड़ों में हुआ है। तब आपको रियलाइज होगा कि अगर ऐसा हो गया तो आप पे टैक्स कितना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा भी है। 2 और तरीके हैं पार्टीज रिफॉर्म करने के। एक है people can put pressure on political parties through petitions, publicity and agitations. ये करता कौन है? Pressure group and movement group. Media, pressure groups, ordinary people, they can play their part. चलिए पढ़ लिया अच्छे से, सिंपल सी चीज बताता हूँ। You know, if you really want to bring change in society and you feel that you do not have time for the direct politics, nor you have that skills, still you can play your part. You know how? Just be pressure group or a movement group. So whenever you feel the decision which is coming up from the political party or the ruling party, and you don't like that, you feel this is against the system, against the society, not for the welfarement of the people, then raise your voice. Stand against it. At least for that time you can come together and help. So play your role in that way. अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं और आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा चेंज चाहिए और ड्रास्टिक चाहिए, रैडिकल चाहिए, then do one thing. Instead of just saying कि ये होता तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, तुम होती तो कैसा कैसा होता, नहीं बॉस, you get into it. Make a political party. Bring the changes what you really want to see. That's the way you reform political parties. आप अच्छे हो ना, आप हमेशा कहते हैं कि नहीं हम अच्छे, ये नेता खराब है, ये पार्टी खराब है। तो चलिए ना, आप अच्छे लोगों को जमा कीजिए, एक साथ लाइए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले साल जब मैं रिकॉर्डिंग करूं तो शायद आप लोग का नाम भी आ जाए, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आप रिवाइज कीजिए। Thank you so much.